Today we will solve question number 8 of exercise 14.3. Chapter is statistics. Again we will draw histogram to represent the data. We have discussed how to draw histogram, but here we will draw a different type of histogram based upon different type of data. A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found. क्या हुआ? Age groups, then frequency, that is number of children playing in a park. For example, 1 to 2 years children, 5, 2 to 3 years, 3 children, 3 to 5 years, 6 children. These are the age groups of different children. Draw histogram to represent the data. अब इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, बट we have already drawn histogram. We know how to draw a histogram. Data is in the form of intervals. Ab you can see here data is continuous. Upper limit, lower limit. These are same 3, 3. These are same 5, 5. These are same. When data is continuous, but here we have something different in this data. For example, 1 to 2. Here, what's the difference between these two? 1, मतलब class size यहाँ 1 है. यहाँ क्लास साइज 2 to 3 1, 3 plus 2 5 होता है. Here class size is 2. 5 plus 2 7 होता है. Class size 2. 3 7 plus 3 10 होता है. Class size is 3. यहाँ आप देख रहे हैं class size 1, then 2, then 3. Here class size is 5. Again class size is 2. That is class size is different. यहाँ class size same नहीं है. आपने देखा था when the data is not continuous, then we convert the data into a continuous form. But here data is continuous. Still we have different class sizes, and when the class sizes are different, we have to adjust the frequencies. हमें frequencies को adjust करके length of rectangle find करनी होती है. जब भी देख रहे हैं आप, here data is continuous but class sizes are different. So length of rectangle के लिए how to find length of rectangle, मैं यहाँ लिख देता हूँ. Length of rectangle is equal to, क्या करना है इसके लिए? फॉर्मूला है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास साइज. दिस वन इज द फॉर्मूला. देखेंगे कैसे. Here class size is 1, 1 का डिफरेंस है. Class size 1, class size 2, 2, here 3, here 5 and 2. But minimum class size कौन सा है यहाँ पे? Minimum class size is 1. So जहाँ पे भी minimum class size होगा multiplied by 1. आप देखेंगे जो question number 9 आप करेंगे, that will be of the same kind, but वहाँ पे class size different होगा. Okay? Minimum class size यहाँ पे कितना? 1. तो हर एक में हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है. Actual frequency जब यहाँ की बात करेंगे, इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5. सो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 5 अपॉन क्लास साइज. यहाँ क्लास साइज है 1 मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज. मिनिमम क्लास साइज भी 1. डिफरेंट कलर्स यूज कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगी ये पिक्चर. अगेन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 3 अपॉन फॉर्मूला क्या है? क्लास साइज. यहाँ क्लास साइज 2 plus 1 3 होता है, मतलब क्लास साइज 1. मिनिमम क्लास साइज अगेन 1. यहाँ आप देखेंगे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इस इंटरवल की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 6 डिवाइडेड बाय क्लास साइज. 3 plus 2 5 होता है, इट मींस क्लास साइज इज 2 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास साइज. अगेन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 12 अपॉन क्लास साइज. 5 plus 2 7 होता है, सो क्लास साइज इज 2 मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज. देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ है 9 अपॉन क्लास साइज. 7 plus 3 10 होगा, सो क्लास साइज इज 3 मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज. हियर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यहाँ आप देख रहे हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 10
अपॉन क्लास साइज 10 प्लस 5 15 होता है, मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज 1, and in the last interval actual frequency is 4 upon class size 15 plus 2 17 होता है, minimum class size is 1. This is what we are trying to find, length of rectangle with the help of adjusted frequencies. देखेंगे आप 5 upon 1 5 होगा, 5 multiply 2 5 multiply 1 again 5, here 3 upon 1 3 multiply 1 3, 6 upon 2 3 multiply 1 3, 12 upon 2 6 multiply 1 6, 9 upon 3 3 multiply 1 3, 10 upon 5 is 2 2 multiply 1 again 2, here 4 upon 2 2 2 multiply 1 is 2. So these are lengths of rectangles. This one is origin, okay, x0 y0. Now एज हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे. सो यू कैन सी 1 से लेके 17 तक, जब 1 से लेके 17 तक है, एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप एक बॉक्स को मतलब ग्राफ शीट पे 10 डिविजन्स को अगर आप 10 रखते हैं तो बिल्कुल छोटा सा ग्राफ आपका बनेगा. ठीक है, आपने कन्वीनियंट यूनिट लेना होता है, कन्वीनियंट स्केल लेनी होती है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू. आप क्या करेंगे, 2 स्मॉल डिविजन्स को 1 रख लें, बड़ी इजीली आपका बड़ी सूटेबल लेंथ का आपका ग्राफ बन जाएगा. यहाँ पे 2 स्मॉल डिविजन जो होंगे उनको 1 रख लें. ओके, आप एक बॉक्स को जब 2 स्मॉल डिविजन्स को 1 रखेंगे तो आपका जो एक बॉक्स होगा उस एक बॉक्स पे आप 5 लिख सकते हैं. ओके, या फिर इससे भी छोटा यूनिट कर सकते हैं आप. ओके, आप एक बॉक्स को 2 रख सकते हैं. जब एक बॉक्स को 2 रखेंगे तो बड़ी इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप. ओके, एक बॉक्स को आप 2 रख लेना, जहाँ पे ग्राफ शीट पे आपके पास एक बॉक्स होगा वहाँ पे 2 लिख लेंगे, नेक्स्ट पे 4 देन 6 8. ओके, नाउ नेक्स्ट वन 1 से 17 तक इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड देन 17. आप 18 तक भी जा सकते हैं. हियर यहाँ आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे, 6 इज द हाईएस्ट लेंथ, तो आप कन्वीनियंटली ऐसा करेंगे, एक बॉक्स को 1 रख लें, 1 देन 2 3 4 5 6 7. ओके, जब आप स्केल मेंशन करेंगे, स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने अभी कहा आप अलोंग एक्स एक्सिस को 1 बॉक्स को आप 1 अगर रखते हैं तो आपका ग्राफ बहुत दूर तक चला जाएगा. आप 1 बॉक्स जो होगा मतलब 10 स्मॉल डिविजन्स उसको इक्वल टू 2 आप कंसिडर करेंगे. ओके, 10 small divisions is equal to 2 units. ओके, आप 2 ईयर्स पे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज है ईयर्स में है, और अलोंग वाई एक्सिस पे क्या होगा, यहाँ एक बॉक्स को आपने 1 रखा, वन थिंग इज टू बी केप्ट इन माइंड. आपने एक चीज का पूरा ध्यान रखना है. वो ध्यान क्या रखना है, मैंने यहाँ 1 2 3 4 रिप्रेजेंट किया, बट जब स्केल ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, आप ग्राफ शीट पे क्या करेंगे, 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 2. इसका मतलब आप ग्राफ शीट पे एक बॉक्स के बाद 2 लिखेंगे, नेक्स्ट बॉक्स के बाद 4 लिखेंगे, मतलब जहाँ पे हाफ बॉक्स होता है वहाँ आप 1 लिख सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव, अब फ्रीक्वेंसीज इनको नहीं आपने कंसिडर करना है, आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को फ्रीक्वेंसी की जगह कंसिडर करना है. फर्स्टली एज 1 to 2, दैट इज एक्स एक्सिस पे 1 to 2 वैल्यू लेंगे, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 यूनिट्स. ओके, दिस वन इज 1 5 यूनिट्स, 1 to 2 5
हमें ड्रॉ करनी है हिस्टोग्राम. जब हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है इसका मतलब इसी के साथ कनेक्टेड होगा नेक्स्ट रेक्टेंगल. देन 2 to 3 3 यूनिट्स 2 to 3 3 यूनिट्स. चलिए यहाँ कर लेते हैं. 3 units means this one is 3. This one and यहाँ ज्वाइन कर देंगे इसको. Now 3 units. Next one 3 to 5. Again 3 units. So 3 to 5. This one is 5. Three units. It's clear. Then 5 to 7 6 units. 5 to 7 6 units. This one is 6. 5 to 7. This one 7 to 10. 3 units. 7 to 10. Three units. 10 to 15. 2 units. 10 to 15. Two units. This one. And last one is 15 to 17. Again 2 units. 15 to 17. This one. Now histogram is complete. Okay. After that, I think बड़े इजीली आप कर सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड. फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है. फॉर्मूला इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज. नाउ वेरिएबल्स, we will represent the variables along x-axis. We have represented each in years. It's very important to mention variables because we have already discussed if we don't mention variables then our whole question can be crossed in the examination. आपके पूरे क्वेश्चन को क्रॉस किया जा सकता है एग्जाम में जब तक वेरिएबल्स नहीं रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राफ हैज नो वैल्यू. व्हाट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, व्हाट योर ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग. ओके, देन दिस वन इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. यू कैन से फ्रीक्वेंसी बट यहाँ मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ही लिखूंगा. और we can say adjusted frequency. हम ऐसा भी लिख सकते हैं. Okay. Now this is question number 8 and question number 8 is very clear. And let me tell you one thing, question number 9 is very similar to this question. Data different होगा, बाकी steps सारे के सारे same है. So you have to solve question number 9 by yourself. And with this question, after solving question number 9, after drawing the histogram for question number 9, your exercise will be complete. That is exercise 14.3 is complete now. Thank you.